Hello students, my name is Bhavin Soni and you are watching Free Coaching in Lockdown 2020. This is my video number 3. In my previous videos of the chapter related to change in the profit sharing ratio among the existing partners of class 12 accountancy, I have taught you the journal entries related to this topic. In this video, that is video number 3 related to this topic, this chapter, I am going to teach you the practical problems related to the journal entries that we have studied in the previous videos. So let us start with the question number 17, that is short sum related to the topic. This is question number 17 from T.S. Garewal and the edition is 2020. Let us see the question. X and Y are partners with ratio 2:1. Their balance sheet showed general reserve rupees 60,000. That means we have general reserve rupees 60,000 in the balance sheet. Then future profit and loss ratio is 3:2. So children, remember, this is the new ratio. So let us write the old ratio is 2:1 and new ratio is 3:2. And we have general reserve rupees 60,000. Okay. Now we have two cases in which we have to pass the journal entry. When general reserve is not to be shown in the balance sheet, यानी general reserve हमें balance sheet में दिखाना नहीं है. There is only one reason when the balance sheet doesn't show the general reserve, that is the general reserve is distributed amongst the partners. Once the general reserve is distributed among the partners, balance sheet does not show the general reserve. तो पहले केस में हम लोग general reserve को partners के बीच में बांट देंगे. और दूसरा केस है when general reserve is not to be shown, when the general reserve is to be shown in the balance sheet, यानी general reserve का benefit हमें partners को देना है, लेकिन हमें general reserve बांटना नहीं है और हमें बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व को दिखाना है. तो जब ऐसे केसेस होते हैं जब आपको बेनिफिट भी देना हो और उसे बैलेंस शीट में भी दिखाना हो, तब आपको डायरेक्ट एंट्री पास करनी पड़ती है. डायरेक्ट एंट्री मैंने वीडियो नंबर 2 में एक्सप्लेन की है. अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लीज मेरा वीडियो नंबर 2 रिलेटेड टू द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एक्जिस्टिंग पार्टनर देखें और फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करें. So let us see the two cases when general reserve is not to be shown in the balance sheet, यानी जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, और दूसरा when general reserve is to be shown in the balance sheet. तो दोनों ही केसेस हम देख लेते हैं. सबसे पहले मैं पहली वाली एंट्री केस 1 कर रहा हूं जिसमें जनरल रिजर्व हमें बैलेंस शीट में नहीं दिखाना है. दैट मींस हमें जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर देना है. तो जनरल रिजर्व की हमेशा क्रेडिट बैलेंस होती है. सो वी विल डेबिट इट टू क्लोज इट. तो हमारी जर्नल एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स के नाम है हमारे एक्स एंड वाई, टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट. यहां पे हमें फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग ये नहीं दिया है, इसलिए वी विल एज्यूम दैट द पार्टनर्स कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग एंड आई पास द एंट्री थ्रू द पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट. अब देख लेते हैं. रिमेंबर चिल्ड्रन, इस केस में हम डायरेक्ट एंट्री नहीं कर रहे हैं. तो जब डायरेक्ट एंट्री नहीं होगी तब जो एंट्री रिजर्व्स की डिस्ट्रीब्यूशन की होगी वो हमारे ओल्ड रेशियो में होगी. दैट मींस 60,000 को हमें ओल्ड रेशियो में बांटना है, दैट इज 2:1. तो 2:1 यानी 60,000 into 2/3. बच्चों 3 1 जा 3 2 जा, यानी ये हो गया हमारा 40,000 और दूसरा हो गया हमारा 20,000. So our journal entry has the amount general reserve is debited with 60,000. ये हो गया हमारा जनरल रिजर्व क्लोज और बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा. X capital will be credited with 40,000 and Y capital will be credited with 20,000. और नरेशन होगा being the general reserve distributed amongst the partners in old ratio. जब भी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, चाहे वो ओल्ड गुडविल हो, चाहे वो रिजर्व्स हो, चाहे वो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हो, हम ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. अब देख लेते हैं केस नंबर 2 when general reserve is to be shown in the balance sheet. अब बैलेंस शीट में दिखाना है और उसका बेनिफिट भी पार्टनर्स को देना है. दैट मींस वी हैव टू पास द डायरेक्ट एंट्री. अब डायरेक्ट एंट्री यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू हम जर्नल एंट्री पास करेंगे, और जब भी हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू जर्नल एंट्री या डायरेक्ट एंट्री पास करेंगे तब हम उसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही पास करेंगे. तो लेट अस फाइंड द सैक्रिफाइस रेशियो. क्योंकि हमारे पास ओल्ड रेशियो भी है, न्यू रेशियो भी है, तो हम इजीली सैक्रिफाइस रेशियो ढूंढ सकते हैं. मान लीजिए कि
हमारे पास न्यू रेशियो नहीं दिया है, ओल्ड रेशियो है 2:1 और यही सेम एंट्री करनी है कि व्हेन द रिजर्व इज टू बी शोन इन द बैलेंस शीट, यानी डायरेक्ट एंट्री करनी है। तो बच्चों सिंपल चीज, सिंपल रूल याद रखो, उस केस में हमारा जो ओल्ड रेशियो होगा वही सेक्रीफाइस रेशियो होगा। हमारे पास तो यहाँ पे हमें 3:2 रेशियो न्यू रेशियो दिया है। सो लेट अस फाइंड फॉर द केस 2 सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करते हैं, इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। एक्स का सेक्रीफाइस शेयर फाइंड करते हैं, एक्स का ओल्ड शेयर था 2/3 माइनस न्यू शेयर है 3/5। बच्चों 3/5 होगा बिकॉज 3 + 2, हम एलसीएम ले लेते हैं 15 × 5 × 5 × 3 × 3, ये हमारा हो गया 10 - 9/15। बच्चों याद रहे ये आएगा हमारा 1/15, ये कर रहा है सेक्रीफाइस। अब देख लेते हैं y का, अगर ये सेक्रीफाइस कर रहा है तो y गेन करेगा उसी अमाउंट से, दैट इज ओल्ड रेशियो इज 1/3 माइनस न्यू रेशियो इज 2, शेयर इज 2/5। एलसीएम ले लेते हैं 15 × 5 × 3, दैट इज 5 - 6, दैट इज -1/15, ये कर रहा है गेन। ओके, नाउ लेट अस सी दी एंट्री, एंट्री किस तरह पास करें। ओके, तो जनरल रिजर्व हमारे पास दिया हुआ है, हमारे पास है 60,000। अब 60,000 पूरा का पूरा हम नहीं बांटेंगे, हम 60,000 का 1/15 शेयर बांटेंगे। ओके, तो लेट अस फाइंड आउट 1/15 शेयर कितना होता है 60,000 का। तो ये आ गया हमारा 4,000। 60,000 का 1/15 शेयर आ गया 4,000 रुपीज। अब हमें सिर्फ 4,000 रुपीज से जनरल एंट्री पास करनी है। सिंपल हमारी वही एंट्री, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हमारे दोनों पार्टनर एक्स और वाई में से हमारा वाई पार्टनर गेन कर रहा है, तो मैं जनरल एंट्री पास करूंगा केस 2 की, गेनिंग पार्टनर यानी वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। ये हो गया हमारा 4,000 रुपीज अमाउंट से जनरल एंट्री पास। मैंने क्या किया सेकंड केस में, व्हेन जनरल रिजर्व इज टू बी शोन इन द बैलेंस शीट। अब इस केस में हमारी बैलेंस शीट बनेगी जब, तब हम उसको जनरल रिजर्व उसमें नहीं दिखाएंगे, लेकिन केस 2 के अंदर हम जनरल रिजर्व पूरा का पूरा 60,000 रुपीज ऑन द लायबिलिटी साइड इट विल अपीयर। मैंने क्या किया, पहले सेक्रीफाइस रेशियो निकाला, एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, दूसरा पार्टनर गेन कर रहा है। अब जितना सेक्रीफाइस कर रहा है, जितना शेयर वो सेक्रीफाइस कर रहा है, उतनी अमाउंट का जनरल रिजर्व ही हम बेनिफिट देंगे पार्टनर को। तो जनरल रिजर्व 60,000 है, उसका 1/15 शेयर निकाला आपने 4,000। अब गेन कर रहा है वाई और सेक्रीफाइस कर रहा है एक्स, तो जनरल एंट्री बनेगी वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट रुपीज 4,000। दिस एंट्री इज पास्ड वाया sacrificing ratio. Now let us start question number 18. Let us start question number 18. Meeta, Gopal and Farhan were partners in profit and loss ratio 3:2:1. तो children हमारा old ratio 3:2:1 और देख लेते हैं न्यू रेशियो क्या है। न्यू रेशियो हमारा है 5:3:2। सिंपल। अब बैलेंस शीट में ये सारी चीजें हमारे पास बैलेंसेस दी हुई है। डिफर्ड एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर 30,000 रुपीस का, दैट इज डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है हमारा, ऑन द एसेट साइड होता है ये। देन वी हैव कॉन्टिजेंसी रिजर्व जो हमारा लायबिलिटी साइड होता है वो 9,000 है। एंड गुडविल वाज वैल्यूड एट रुपीस 4,80,000। बच्चों ये गुडविल है, न्यू गुडविल है फॉर्म की, जिसका हमें बेनिफिट सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को देना है, यानी गेनिंग पार्टनर उतनी गुडविल, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को उतना शेयर प्रोवाइड करेगा। सो लेट अस पास दी जनरल एंट्री वन बाय वन। पहले मैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की जनरल एंट्री पास कर रहा हूं। डिफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर जो है हमारा 30,000। ओके, नाउ मैंने प्रीवियस 17th क्वेश्चन में ये बताया था कि जो भी रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, अगर उसकी डायरेक्ट एंट्री नहीं पास करनी है तो आपको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हम लोग देख लेते हैं हमारे जो पार्टनर्स है, मीता के लिए कितना शेयर बनता है 30,000 का, 30,000 इंटू 3/6,
3/6 हमारा बनेगा 15,000। देन मीता अलग दूसरा पार्टनर है गोपाल 30,000 इंटू 2/6 वो बनेगा हमारा 10,000 एंड फरहान 30,000 इंटू 1/6 वो बनेगा हमारा 5,000। बच्चों तो मैं इसकी जर्नल एंट्री पास कर रहा हूं। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, डिफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर की जर्नल एंट्री पास कर रहा हूं। डिफर्ड एक्सपेंडिचर, डिफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर जो हमारा एसेट साइड होता है उसकी डेबिट बैलेंस होती है, तो आई विल क्रेडिट इट उसको क्लोज करने के लिए, तो डेबिट करूंगा मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। तो मेरी पहली जर्नल एंट्री है मीतास कैपिटल अकाउंट डेबिट, गोपाल कैपिटल अकाउंट डेबिट, फरहान कैपिटल अकाउंट डेबिट टू deferred advertisement expenditure account. Amount is 15,000, 10,000, 5,000 and 30,000। ये हो गई हमारी फर्स्ट एंट्री। डिफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब बच्चों मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूं कॉन्टीजेंसी रिजर्व जो कि लायबिलिटी साइड होता है और उसकी क्रेडिट बैलेंस होती है, तो आई विल डेबिट द कॉन्टीजेंसी रिजर्व। लेकिन याद रहे कि रिजर्व हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हम ओल्ड रेशियो में करेंगे। तो हमारा दूसरा रिजर्व है कॉन्टीजेंसी रिजर्व। देख लेते हैं कॉन्टीजेंसी रिजर्व कितने रुपए है, 9,000। अब मीता के लिए 9,000 इंटू 3/6 यह आ जाएगा हमारा 40,500, बेसिकली 1/2 होता है ये। देन 9,000 इंटू 2/6 ये हो जाएगा हमारा 3,000 और 9,000 इंटू 1/6 ये हो जाएगा हमारा 1,500, 4,500 एंड 4,500, 1,500। तो ये हो गए हमारे डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टीजेंसी रिजर्व के। इसकी जर्नल एंट्री मैं पास कर रहा हूं। ये एंट्री नंबर ए, ये एंट्री नंबर बी है। अब कॉन्टीजेंसी रिजर्व जो हमारा क्रेडिट होता है हम उसे डेबिट करेंगे। सो कॉन्टीजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू मीतास कैपिटल अकाउंट टू गोपाल्स कैपिटल अकाउंट एंड टू फरहान कैपिटल अकाउंट। कॉन्टीजेंसी रिजर्व जो हमारी 9,000 है, मीता का डिस्ट्रीब्यूटिंग शेयर 4,500, गोपाल 3,000 एंड फरहान 1,500। तो ये हो गई हमारी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टीजेंसी रिजर्व की जर्नल एंट्री। अब हम देख लेते हैं कि गुडविल किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करनी है, बिकॉज गुडविल है वो न्यू गुडविल है और पूरी की पूरी 4,80,000 गुडविल पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी। ये गुडविल तो फर्म की गुडविल है। तो गुडविल की एंट्री करने के लिए बच्चों अगर कुछ मेंशन नहीं किया है तो आपको गुडविल की डायरेक्ट एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, जो कि गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर या गेनिंग पार्टनर के शेयर निकालने के लिए हमें सैक्रिफाइस या तो गेन रेशियो निकालना पड़ेगा। तो बच्चों आई एम फाइंडिंग सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। बच्चों ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ है हमें और न्यू रेशियो भी हमें दिया हुआ है। तो देख लेते हैं मीता का सैक्रिफाइस शेयर कितना निकलता है, ओल्ड रेशियो 3/6 और न्यू इज 5/10। तो एलसीएम हमारा आ गया 30, 5 एंड 3 5 3 5 3 15 and 5 3 15। ओके 0/30। दैट मींस मीता ना ही सैक्रिफाइस कर रही है ना ही वो गेन कर रही है। अब देख लेते हैं गोपाल का ओल्ड रेशियो है 2 शेयर है 2/6 और न्यू शेयर है 3/10 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 5 2 10 माइनस 9 1/30 आ गया, यानी गोपाल सेक्रीफाइस कर रहा है बच्चों। अब गोपाल सेक्रीफाइस कर रहा है, मीता कुछ नहीं कर रही है, तो फरहान गेन करेगा। देख लेते हैं गेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
1/6 minus 2/10 into 5 into 5 into 3 into 3 5 minus 6 minus 1/30 ये हो गया हमारा गेन। ऑब्वियस है कि कोई अगर नीता ना ही गेन कर रही है ना सेक्रीफाइस कर रही है, गोपाल 1/30 शेयर दे रहा है, तो बचा फरहान, फरहान तो 1/30 शेयर ले रहा होगा, तीन ही पार्टनर्स है। ओके, तो यानी बेसिकली हमें 4,80,000 गुडविल जो है उसका 1/30 शेयर निकालना है। तो गुडविल देख लेते हैं हम, 4,80,000 इंटू 1/30 जो होता है हमारा 16,000 रुपए, 16,000 रुपीज हमारा शेयर होता है। 16,000 रुपीज का शेयर जो है उसकी हमें जनरल एंट्री पास करनी है, ना कि हमें 4,80,000 की जनरल एंट्री पास करनी है। तो हम देख लेते हैं वही हमारी स्टीरियो एंट्री से गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देख लेते हैं गेनिंग पार्टनर कौन है, फरहान है वो गेनिंग पार्टनर है और गोपाल है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो मैं जनरल एंट्री यहां पे पास करूंगा, फरहान कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गोपाल कैपिटल अकाउंट, अमाउंट आएगी हमारी 16,000। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें मैंने ये इसमें ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया, डिफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर को, कंटीजेंसी रिजर्व को भी मैंने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया। क्यों? क्योंकि हमें ये कहा नहीं गया था कि डायरेक्ट एंट्री करो, या तो ये नहीं कहा गया था कि डिफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर हमें बैलेंस शीट में दिखाना है। अगर दिखाना है तो हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं, तो हमें डायरेक्ट एंट्री पास करनी पड़ेगी। लेकिन गुडविल की हम डायरेक्ट एंट्री ही पास करेंगे, बिकॉज न्यू गुडविल दी हुई है और हमें 4,80,000 का 1/30 शेयर का बेनिफिट हमें गोपाल को देना है, और फरहान कौन देगा, फरहान उसका शेयर गोपाल को प्रोवाइड करेगा। Let us now see question number 20 from the same book, T.S. Garewal edition 2020. X, Y and Z are partners with the ratio 5:3:2, that is old ratio, and the future ratio is 2:3:5. मैंने बच्चों यहाँ पे शॉर्ट में क्वेश्चन लिखा है ना, आगे देख लेते हैं। They decided to record accumulated profits, losses and reserves without affecting the book values। इसका मतलब विदाउट अफेक्टिंग द बुक वैल्यूज, यानी हमें ये जो भी रिजर्व्स या तो लॉसेस या तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स दिए हुए हैं उसे हमें बैलेंस शीट में इसी अमाउंट पे दिखाने हैं, उसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। तो यानी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 17 और 18 में कहा था कि जब हमें विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू लिखा हो, या तो विदाउट यूजिंग द अकाउंट लिखा हो, या तो विदाउट डिस्ट्रीब्यूटिंग लिखा हो, तो हमें डायरेक्ट एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी, और उसके लिए हमें सेक्रीफाइस रेशियो चाहिए। तो हमें इंडिविजुअल एंट्री पास नहीं करनी है, जनरल रिजर्व की अलग से, प्रॉफिट एंड लॉस की, क्रेडिट बैलेंस की अलग से, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस की अलग से नहीं करनी है। हमें तीनों की एक साथ सिर्फ एक जनरल एंट्री करनी है। तीनों की आप कर सकते हैं, बट यहाँ पे लिखा हुआ है बाय पासिंग अ सिंगल एंट्री विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यूज, यानी हमें बुक वैल्यूज को टच करना नहीं है, यानी हमें डायरेक्ट एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, जनरल रिजर्व दिया हुआ है 6,000 रुपीज। बच्चों रिजर्व की क्रेडिट बैलेंस होती है, याद रहे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसकी डेबिट बैलेंस भी हो सकती है, लॉस हो तो, और प्रॉफिट हो तो क्रेडिट बैलेंस भी हो सकती है। लास्ट में दिया हुआ एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, बच्चों इसकी डेबिट बैलेंस होती है, ताकि क्योंकि ये एसेट साइड हमारा फिक्टिशियस एसेट माना जाता है, या डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाता है। तो हम इसकी नेट इफेक्ट देख लेते हैं, प्लस माइनस करना पड़ेगा हमें, क्योंकि कुछ की डेबिट बैलेंसेस है और कुछ की क्रेडिट बैलेंसेस है। 24,000 प्लस 6,000 ये दोनों क्रेडिट है बच्चों, और 12,000 है वो डेबिट है। तो हम नेट इफेक्ट देख लेते हैं, 24 प्लस 6 ये हमारा होता है 30, 30 माइनस 12 हमारा नेट इफेक्ट आएगी 18,000 की नेट इफेक्ट की एंट्री हमें पास करनी पड़ेगी। अब हम सेक्रीफाइस रेशियो निकालते हैं, तो लेट अस सी सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो हमारे पास x का है 5/10 माइनस न्यू रेशियो है 2/10। बच्चों डिनोमिनेटर सेम है, दोनों 10 है, तो हमारे पास आ जाएगा 3/10। ये आ गया हमारा x सेक्रीफाइस कर रहा है। y देख लेते हैं, y मुझे ऐसा लग रहा है दोनों में 3 3 है, यानी 3/10 माइनस 3/10 ही इज आउट ऑफ द पिक्चर, दैट इज 0। ना ही ये सेक्रीफाइस कर रहा है, ना ही ये गेन कर रहा है। अब z बच्चों आप
इतना इतने तक वीडियो देख के आप समझ गए होंगे कि x अगर सेक्रीफाइस कर रहा है और y कुछ नहीं कर रहा है तो z क्या करेगा, गेन करेगा। कितना शेयर गेन करेगा, सेम जितना शेयर x ने दिया है उतना शेयर z गेन करेगा। तो हमारा है ओल्ड रेशियो 2/10 और न्यू रेशियो है 5/10, आ गया -3/10, ये आ गया हमारा गेन। यानी कुल मिला के हमें 18,000 रुपए का 3/10 रेशियो निकालना है। तो हम लोग देख लेते हैं 18,000 इंटू 3/10 जो होता है हमारा 5400 रुपीज की हमें नेट एंट्री पास करनी है। अब हम एंट्री पास करते हैं, सेम डायरेक्ट एंट्री क्या होगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी Z कैपिटल अकाउंट डेबिट टू X कैपिटल अकाउंट ₹5400। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 20। इस वीडियो में मैंने सारे जितने भी इस चैप्टर रिलेटेड शॉर्ट सम्स थे related to the goodwill and related to the distribution of reserves and accumulated profit, वो सारे आपको समझा दिए। अगर आपको उसकी जर्नल एंट्रीज फिर से देखनी है तो गो रेफर टू माय वीडियो नंबर 1 एंड वीडियो नंबर 2 ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एक्जिस्टिंग पार्टनर्स ऑफ क्लास 12 अकाउंटेंसी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, थैंक यू।